we have done nomenclature part. So today we are going to start that mechanism part of this topic, which is very important. So we'll start with first part is what bond fission. What is fission? Fission is what breaking of bond, breaking of bond. So in that there are two things. One is what homolytic fission, and next one is what heterolytic fission. So first of all, listen here. Lysis means breaking, and homo is what same. Okay. Likewise, here also lysis means breaking and hetero means what different. Okay. So यहाँ पे देखो, across the bond CL across the bond methyl, that means both the groups are what I mean same. But here if you observe, across the bond one is what Br and one is what carbon, that means these two are not same. Okay. So अभी इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है. So first of all, let me tell you one thing. डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, बेटा ध्यान देना. Please pay attention here. uh, Suppose now I am talking about homolytic fission. Okay. Now, so here, suppose here one bone, one bone, अरे काय करताय बाप्पा. one bone piece is there. Okay. Now, so here one dog is there. Okay. And here also one dog is there. Okay. Of same power. That means these two dogs have same pulling power. Now, see, this is what very first topic is going on. That's why आपको मालूम नहीं है concept क्या है. Electron pulling capacity, electron pulling tendency is called electronegativity. It's called electronegativity. या थोड़ा याद रखो, electronegativity. So as these two dogs have same pulling power, so what will happen, इन दोनों में ये बोन पीस के लिए बहुत झगड़ा चलेगा, ज्यादा एनर्जी उनको लगाना पड़ेगा, तभी जाके ये बोन पीस क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. एंड वन पीस विल with this dog. Okay, one piece will retain with this dog and second piece will this dog. That means equal breaking हो जाएगा, इसका equal breaking हो जाएगा. Okay. Such पहले हमारा ब्लड टेस्ट. बेटा आप लोग म्यूट करो सब लोग. भाई हेलो हेलो, आप लोग सब लोग म्यूट करो प्लीज. So this is what homolytic fission. That means homolytic fission takes place between two same atoms, और ये दोनों का इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर. व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ऑलमोस्ट सेम है. सो इसमें क्या होगा, ये बोन पीस इक्वली ब्रेक हो जाएगा और एक आधा पीस इसके पास आएगा और आधा पीस इसके पास आएगा. ओके, दिस इज कॉल्ड होमोलिटिक फिजन. व्हाट इज इट कॉल्ड? होमोलिटिक फिजन. नाउ आगे देखते हैं अभी हम लोग. लिसन. So we can say what is bond fission में homolytic fission. So it is symmetrical breaking of covalent bond. What is covalent bond? A bond which is formed by sharing of electron. How? In such a way that each species means what? Maybe atom, maybe molecule. Okay, each species acquire one electron each of the shared pair. ये जो shared pair था, इसका ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसका मतलब बॉन्ड होता है. ओके. तो बॉन्ड इक्वली ब्रेक हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये का क्लोरीन के पास आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के पास आएगा. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी रोट हियर, सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच अ वे दैट each species acquire one electron each of the shared pair.
नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको मालूम है ये इक्वल ब्रेकिंग कहाँ पे होगा, बिटवीन, देखो इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू सेम एटम्स और atoms having nearly same electronegativity, means what, electron attracting power. Okay, now what is next thing, अभी ये दोनों में झगड़ा ज्यादा होने वाला है, so it takes place at high temperature. Okay, this such type of breaking takes place at high temperature or in presence of UV light. Okay, now what is next one, it takes place in presence of non-polar solvent. बताता हूँ क्या है नॉन पोलर सॉल्वेंट, मीन्स यहाँ पे कुछ पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस है क्या, नहीं है ना. नाउ वन मोर थिंग, one rule is there for solubility, like dissolves like, means polar compound dissolves in polar solvent and non-polar compound dissolves in non-polar solvent. So as we are not getting any positive and negative charge, that means here we are going to use non-polar solvent. That's why homolytic fission takes place in non-polar solvent. और ये ब्रेक होने के बाद क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, ना पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव चार्ज. सो दैट्स व्हाई if any species with one electron, and that's why the product form in homolytic fission is free radical, is what tell me, free radical. Okay, अभी ये definition आपको करना है, symmetrical breaking of covalent bond in such a way that each species acquire one electron each of the shared pair. Now what are the characteristics, so देखो condition, what is first condition, okay, कहाँ पे आता है वो, बिटवीन टू सेम एटम्स और एटम्स हैविंग नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. व्हाट इज नेक्स्ट वन, झगड़ा ज्यादा चलेगा, इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर और यूवी लाइट, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दैट्स व्हाई इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, फ्री रेडिकल. तो आप क्या करने का, कंडीशन क्या है ये वाला, एक एक वर्ड याद रखने का, प्रोडक्ट क्या है, जस्ट यू रिमेंबर फ्री रेडिकल, पूरा लाइन बाय हार्ट नहीं करेगा. What is solvent, non-polar solvent, and just put two example. आप कोई भी what is this one, देखो ना, आपको मैंने पढ़ा है ना, कार्बन कार्बन 2 कार्बन है, ईथ सिंगल बॉन्ड एन, तो ये इथेन है ना, तो इथेन को मैंने ब्रेक किया, तो ये जो बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया. ओके, दिस इज कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल. What is next one, heterolytic fission. What is hetero, different. Okay, अभी ध्यान दो. What is heterolytic fission? Hetero is what, different. Please pay attention here. अभी देखो स्टोरी क्या है. वापस यहाँ पे बोन पीस है. ओके, यहाँ पे एक डॉग इधर दिख रहा है, इट इज लाइक दिस. और एक डॉग यहाँ पे है, वो इतना बड़ा वाला है और ये छोटा वाला है. ओके, अभी क्या होगा, लिसन, ये दोनों का झगड़े में, इन दोनों का झगड़े में ये क्या करेगा, दिस डॉग इज बिगर, दैट मीन्स इसका पावर ज्यादा है, किसका, मीन्स व्हाट, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है. ओके, इट इज लाइक दिस. ओके, एंड दैट्स व्हाई व्हाट विल हैपन, जब ये दोनों झगड़ा हो जाएगा तो ये डॉग क्या करेगा, ये हड्डी के साथ इसको भी खा लेगा. इन शॉर्ट, मजाक में बोला, इन शॉर्ट दिस इन वोल पीस, दिस एंटायर बोन पीस विल बी द सोल प्रॉपर्टी ऑफ दिस डॉग. दैट मीन्स इसके ऊपर ही 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं रहेगा. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस गेट निगेटिव चार्ज एंड इसको कुछ नहीं मिला तो ये डेफिशिएंट हो गया, एंड दैट्स व्हाई इसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज. क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज. ओके बेटा, अभी ध्यान देना.
एक चीज आप याद रखो केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओके लिसन, बेटा प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज आप लोग को वीडियो आपका सब घर का सब डिस्टर्बेंस यहाँ सुनने को आता है, प्लीज जिसका भी वीडियो बार बार ऑन हो रहा है प्लीज रिक्वेस्ट है बंद करो. नाउ लिसन, so first of all, as this dog has greater pulling power, that means उसका electronegativity ज़्यादा है, that's why it is going to acquire this entire bone piece. that means ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये इसके पास ही जाएगा, इसके पास कुछ नहीं जाएगा, that's why ये deficient बन गया और ये rich बन गया ना. इसके आगे याद रखो, सब कुछ लिखने का नहीं बेटा, those species or atoms or radicals कुछ भी, if they carry negative charge, it means they are electron rich, they are electron rich. ओके ये आपको मालूम होगा. ओके तो अभी क्या होगा, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पोलैरिटी आ गया, पोलैरिटी आ गया करके अपने को क्या लगेगा, पोलर सॉल्वेंट. क्या लगेगा, पोलर सॉल्वेंट लगेगा पहली बार. ओके और ये दोनों का पावर में इसका पावर ज्यादा है तो खेल तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा. ओके इट इज लाइक दिस, दैट्स व्हाई हियर देयर इज नो नीड ऑफ व्हाट टेल मी हाई टेम्परेचर. ओके और ये किसका बीच में होगा, ये किसका बीच में होगा, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, मींस व्हाट हैलोजेंस आर इलेक्ट्रोनिगेटिव और ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव. दैट मींस ये दोनों का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या मांगता है, डिफरेंस मांगता है, लार्ज डिफरेंस मांगता है. तभी अभी ये Br निगेटिव है तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा. ओके इट इज लाइक दिस. नाउ आगे देखो, so what is heterolytic fission? So first of all, hetero means different, lysis means breaking. So यहाँ पे ब्रेकिंग क्या हो रहा था, 50-50 हो रहा था क्या, इक्वल हो रहा था क्या, नहीं अनइक्वल हो रहा था. तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन सच ए वे दैट both the electrons of the shared pair, किसने खाया था, जिसका पुलिंग पावर ज्यादा था, both the electrons of the shared pair acquired by any one atom which is more electronegative, okay simple सा definition है. what is next one, condition. तो अभी देखो, it takes place between two different atoms having large difference in electronegativities. नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या है, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलैरिटी आ गया था. व्हाट इज नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट. अभी इसमें क्या होगा, एक के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना. सो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट्स आर कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन, कार्बोकैटायन एंड कार्बेनायन. ओके यहाँ पे देखो ये क्या है, देखो आपको मैंने पढ़ा था Br अटैच टू C, है ना. C मींस व्हाट, टर्शरी, 1 2 3 4 मींस व्हाट, ब्यूटाइल. तो ये क्या बन गया, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड. क्या बन गया, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ओके अभी आउट ऑफ C एंड Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये Br देखो आ गया ना पेयर इलेक्ट्रॉन की ब्रोमीन के पास, तो ब्रोमीन बन गया रिच और एक कार्बन बन गया डेफिशिएंट. तो यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, कार्बोकैटायन. क्या क्रिएट हुआ, कार्बकैटायन और ब्रोमीन एनायन. ओके दैट मींस प्रोडक्ट्स हेटेरोलिटिक फिजन में प्रोडक्ट क्या रहता है, कैटायंस और एनायंस. ओके सो दिस इज व्हाट फर्स्ट थिंग, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक. अभी याद क्या रखना है इसमें, अभी ये पूरा आंसर आप बाय हार्ट नहीं करने का, या 2 टाइम या 3 टाइम नहीं लिखने का. अरे हाँ, होमोलिटिक फिजन नंबर 1 डेफिनेशन एंड देन कंडीशन एंड प्रोडक्ट. ओके 2 to 3 कंडीशन एंड 1 एग्जांपल, खत्म हो गया. हेटेरोलिटिक फिजन, डेफिनेशन, कंडीशन एंड प्रोडक्ट एंड अलोंग विद दैट एग्जांपल. ओके चलो आगे. नाउ 1 मिनट. अभी देखो यहाँ नेक्स्ट पार्ट इज रिएजेंट. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, रिएजेंट. हाँ अभी 2 मिनट यहाँ पे ध्यान देना. अभी आपको मालूम होता है बेटा, प्लीज ध्यान.
So suppose this is what one reactant, A plus B gives C plus D. तो अगर आपको मालूम है कि लेफ्ट में जो रहता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, राइट में जो रहता है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, सबको मालूम है. सो सपोज इफ आई एम कॉलिंग ए एज रिएक्टेंट, ए एज रिएक्टेंट, तो बी आप बोलोगे सर बी भी तो रिएक्टेंट है. यस यू आर राइट, बट अभी इसके आगे याद रखने का, एक को रिएक्टेंट बोलोगे ना तो दूसरे को बोलने का सबस्ट्रेट. क्या बोलने का? सबस्ट्रेट. ओके, दिस वन ये याद रखो. क्या बोलने का? एक को बोलने का रिएक्टेंट, दूसरे को बोलने का सबस्ट्रेट. ये आपको पहले मालूम हो. ओके, नाउ आगे. सो reagent are of two types. Reagents are of two types. What is that? Listen. Reagents are of two types. एक क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और दूसरा क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. ओके, सो one is called nucleophilic reagent, or it is called nucleophile, and another is called electrophilic reagent, or it is called electrophile. अभी एक सिंपल सा निमोनिक्स बताता हूँ, पहले मतलब बताता हूँ. न्यूक्लियो मीन्स व्हाट? न्यूक्लियस. एंड नो नीड टू टेल, फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड वी हैव बीन स्टडिंग, है ना, कि न्यूक्लियस कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरीज नेगेटिव चार्ज, एंड दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो न्यूक्लियोफिलिक, फिलिक मीन्स एफिनिटी, एफिनिटी मीन्स व्हाट? प्यार. ओके, उसको किससे प्यार है? ये जो रिएजेंट है उसको प्यार किससे है? न्यूक्लियस से है. तो न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन रहता है. तो बट ऑब्वियस ये जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो बंदा है, इट मस्ट हैव कैरी नेगेटिव चार्ज. ओके, लाइक दिस. आप लोग अभी याद रखने का, न्यूक्लियोफाइल का N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव चार्ज. N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव चार्ज. अभी देखो 2 मिनट पहले में मैं बताया था, नेगेटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, और रिच पीपल क्या करते हैं? रिच पीपल पैसा डोनेट करते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है बंदा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा. ओके, एंड लेट मी टेल यू, those substances which donate electron are called Lewis base, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनको बोलते हैं लुईस एसिड. क्या बोलते हैं? लुईस एसिड. ओके, नाउ सो व्हाट इज दैट? देखो मैं वापस एक बार बताता हूँ. न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, इसको आराम से पढ़ो. रिएजेंट है, उसको प्यार है किससे? न्यूक्लियस से. दैट मीन्स वो जो रिएजेंट है इट मस्ट हैव कैरी नेगेटिव चार्ज. नहीं याद रहा तो न्यूमोनिक्स याद रखो. न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव चार्ज. एंड नेगेटिव चार्ज अगर मैं आपको पूछूं कि किसके ऊपर रहता है, तो आप बोलोगे सर एनायंस के ऊपर रहता है. यस, तो देखो, अ रिएजेंट which can donate lone pair of electron in chemical reaction is called nucleophile. बोलो बेटा, reagent which can donate lone pair of electron in chemical reaction is called nucleophile. अभी what are the characteristics? तो first of all it carries N से, it carries negative charge. अभी आपको मालूम है नेगेटिव चार्ज मीन्स क्या बोलते हो आप लोग? एनायन. तो देखो 6 पॉइंट देखो, दे आर एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स. हाँ, एक मिनट ध्यान देना. निगेटिव चार्ज से एनायन तो सबको मालूम है, तो सर ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ये क्या लिखा है? तो देखो यहाँ एक मिनट. हाँ, देखो यहाँ, सपोज आई एम राइटिंग हियर NH3. So what is central atom? Nitrogen. What is atomic number of nitrogen? It is 7.
What is the configuration of this thing? It is 2 and 5, है कि नहीं? 5. तो देखो outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2. What is this one? What is this one? 3. 3. यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 3. What is next one? 4 and 5. तो देखो ये जो 5 है इसका हिसाब मैंने यहाँ पे दिया 1, 2, 3, 4 and 5. So if you observe carefully, out of this 5 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, ये भी बॉन्ड बनाया, बट ये जो दोनों है ये दोनों ऐसे ही है. They are called unshared pair or they are called lone pair. What that called? Lone pair electrons. Lone pair electrons. And इसका अनयूज इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे पास अनयूज पैसा पड़ा है तो मैं डोनेट कर सकता हूं. एंड दैट्स व्हाई दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. समझा बेटा? सो दिस अमोनिया मॉलिक्यूल इन विच दिस नाइट्रोजन इज अ सेंटर विथ इलेक्ट्रॉन रिच, विथ इलेक्ट्रॉन रिच. समझा बेटा? इट इज लाइक दिस. नाउ आगे so first thing, N say it carries negative charge. Okay sir, it is what they are, what anion or neutral molecule with electron rich center. अभी आपको समझा कि नेगेटिव चार्ज है. हाँ सर अभी आपने बताया था. दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन रिच. लॉजिकली पॉइंट लिखना है. दे आर इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू डोनेट इलेक्ट्रॉन. नाउ व्हाट इज बेस एंड एसिड कंसेप्ट? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लुईस बेस रहता है. दैट्स व्हाई दे आर लुईस बेस. अभी फिफ्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. अभी अटैक. रिच आदमी किसके ऊपर जाके अटैक करेगा? पुअर पीपल के ऊपर. सो दे अटैक ऑन, अभी मैं ऐसा लिखूं इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज तो नहीं चलेगा. सो व्हाट आर इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज कॉल्ड? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. ओके एंड जस्ट राइट ऑन एग्जांपल. देखो यहाँ पे मैंने ब्रोम क्लोराइड क्लोरीन एनायन लिखा, ब्रोमीन लिखा. NH3 देखो लोन पेयर है, वाटर के पास लोन पेयर है, अल्कोहल के पास लोन पेयर है कि नहीं? सो इट इज लाइक दिस. सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? चलो बोलो. N स्टैंड्स जो मैंने पढ़ाई कर रहा बस हो गया. आफ्टर रिक्वेस्टिंग सेवरल टाइम तभी भी आप म्यूट नहीं कर रहे हो. Now please pay attention. So it is nucleophile, it is negative charge. So reagent which can donate lone pair of electron in chemical reaction is called nucleophile. कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच है तो डोनेट करेगा तो लुईस स्पेस है. और अटैक किसके ऊपर करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के ऊपर. ओके इट इज लाइक. नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल? सेम रिएजेंट जिसको फाइल मींस प्यार है किससे? इलेक्ट्रॉन से. तो इलेक्ट्रॉन तो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज. दैट मींस वो जो रिएजेंट है इट मस्ट कैरी पॉजिटिव चार्ज. एंड आपको मालूम है जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आदमी, अगर मैं मनी डेफिशिएंट हूं तो मैं पैसा खींच लूंगा. लाइकवाइज इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. तो देखो अ रिएजेंट which can accept electron pair in chemical reaction is called electrophile. Now what is that? तो आप लोग अभी ये याद रखने का नहीं, आप लोग सिर्फ न्यूक्लियोफाइल याद रखने का. सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? नेगेटिव चार्ज. अरे हाँ तो आई हैव टू राइट ऑन इलेक्ट्रोफाइल. इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज. व्हाट इज पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था वो क्या था? रिच था. तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. वो लुईस बेस था तो ये लुईस क्या है? एसिड है. एंड अभी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसके ऊपर जाके अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच के ऊपर. तभी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना. ओके एक बेगर दूसरे बेगर के घर पे जाके चोरी नहीं करता. इट इज लाइक दिस. सो एंड दे आर व्हाट? कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर. तो आपको मैंने
इसके पहले बताया इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, अभी 2 मिनट में आपको मैं बताता हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। हाँ 2 मिनट ध्यान देना। Suppose I am writing here B F थ्री, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है 5, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन 2 and 3, ओके लिसन हियर, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अभी इसके पास देखो, इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का है, एक इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन का है कि नहीं। तो यहाँ पे शेयरिंग होगा, तो शेयरिंग होगा तो क्या होगा, यू नो 1 मिनट, तो शेयरिंग होगा तो क्या होगा, लिसन हियर, ये शेयर कर लेगा। सो यू नो एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, एटम कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, atom can accept electron or atom can share electron, atom can share electron, atom can donate electron, atom can accept electron or atom can share electron. Why to complete the octet, to complete the octet। तो देखो यहाँ पे व्हाट इज ऑक्टेट का मीनिंग, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 and 6। तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, दैट मींस स्टिल इट इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट, 2 electrons, 2 electrons, and that's why all the time this center हम लोग बोलेंगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है करके, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ओके दिस, ये आपको मालूम होगा ना, ओके आगे देखिए। So it carries positive charge, electron deficient, accept electron, Lewis acid, attack on electron rich species, and they are cation or neutral molecule with electron deficient center। कौन सा देखो, अमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, कार्बोकैटायन, AlCl3, BF3, ZnCl, ओके दिस। अभी आगे, सो रिएजेंट हो गया, फिजन हो गया। अभी देखते हैं, दिस इज इंटरमीडिएट्स, नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वो किधर तो बीच में रहेगा, ओके। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट, बेटा ध्यान देना। सपोज आई एम हैविंग one reaction, A gives B, and in this is first step and this is what second step, this B gives C। So if I ask you what is final initial reactant, तो आप बोलोगे A, ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला कट हो गया, एंड फाइनल प्रोडक्ट इज व्हाट C। तो रिएक्टेंट A हो गया, प्रोडक्ट C हो गया, तो फिर B क्यों आ गया बीच में। सो ये जो B है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, ये आपको मालूम है। सो 12th में आपको एक पार्ट आएगा, बट मैं अभी बता देता हूँ। अगर देयर आर 2 स्टेप्स, सो इंटरमीडिएट 1 रहेगा। अगर 3 स्टेप्स है तो इंटरमीडिएट 2 रहेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टेप्स -1 इज व्हाट इंटरमीडिएट। अभी बेटा ध्यान देना, रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट C है, तो बट दिस A कन्वर्ट्स इनटू C वाया व्हाट B। सो जितना जल्दी ये B फॉर्म होगा उतना ही जल्दी वो B रिएक्ट होके क्या बनाएगा, C बनाएगा, ओके। दैट मीन्स ये B का जल्दी जल्दी फॉर्म होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये फर्स्ट स्टेप में भले ही हम लोग बी को इंटरमीडिएट बोल रहे हैं, बट ये फर्स्ट स्टेप के लिए ये तो प्रोडक्ट ही है ना, फर्स्ट स्टेप के लिए तो प्रोडक्ट ही है।
So now let me tell you one thing. Listen. More stable, one rule is there, more stable the product, more easily it is formed. That means जितना वो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज्यादा है उतना उसका फॉर्मेशन जल्दी जल्दी होगा, उतना उसका फॉर्मेशन जल्दी 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 हो जाएगा. ओके, दैट मीन्स इसका स्टेबिलिटी के ऊपर, अगर इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है तो जल्दी जल्दी ये फॉर्म होगा, और जितना जल्दी जल्दी ये फॉर्म होगा उतना उसका ये कन्वर्जन क्या होगा, प्रोडक्ट में हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट इंटरमीडिएट. ओके, अभी हम लोग आगे देखते हैं. सो देयर आर थ्री थिंग. लिसन हियर, व्हाट इज दैट? वन इज कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, नेक्स्ट वन कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज, एंड नेक्स्ट वन कार्बन विथ डॉट. ओके, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, कार्बन विथ डॉट एंड कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज. मीन्स यहाँ पे लोन पेयर आ गया. अभी यहाँ पे क्या है देखो, 1 2 3, व्हाट दिस वन 1 2 3, व्हाट दिस वन 1 2, एंड ये नेगेटिव चार्ज है. One, two, three is 1 2 3 a डॉट, इसके ऊपर ये. Now, what is this one? This is called carbocation. What is this one? This is called carbanion, और इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल. देखो, अभी आपने एक 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले नाम सुना है कार्बोकैटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल. अरे हाँ सर, फ्री रेडिकल is the product of homolytic fission and carbocation and carbanion are the product of heterolytic fission. Okay, so it carries positive charge. So if I write down here it is what charge, तो मैं लिखूंगा it carries positive charge. And you know one thing, any species with positive charge, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो मैं लिखूंगा with respect to electron it is electron deficient. मेरे को पॉइंट बनाना बहुत इजी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. व्हाट इज नेक्स्ट वन? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ओके, और जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है वो अकॉर्डिंग टू लुइस वो क्या है, एसिड है. क्या है, एसिड है. ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट वन? अभी एक टॉप पॉइंट है वो आपको हुआ नहीं है, इसका हम लोग को लिखना है हाइब्रिडाइजेशन, जो आपको मालूम नहीं है. हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री. ज्योमेट्री मीन्स उसका शेप. नाउ हियर हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड ज्योमेट्री इज प्लेनार, मीन्स एक ही प्लेन में वो रहेगा, एक ही प्लेन में वो रहेगा. तो दिस वे 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखा एंड डेफिनेशन लिखूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट 2 मार्क्स. मैं वापस बता रहा हूँ. हियर कार्बन एटम विथ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड व्हाट दैट मीन कार्बोकैटायन. यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है देखो, इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 6, that means it is surrounded by 6 electron. What is this one? 1 2 3 4 5 6 and 7. This is surrounded by 7 electron. And what is this one? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. It is surrounded by 8 electrons. Okay, ये 6 electron, ये 7 electron और ये 8 electrons. Okay, this way. And क्या क्या लिखना है देखो, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, लुइस कंसेप्ट क्या है, और हाइब्रिडाइजेशन. ये हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या है, इट टेल्स यू अबाउट सिग्मा बॉन्ड. हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? सपोज कोई भी एटम है ऐसे, तो याद रखो टॉपिक हुआ नहीं है, बाद में होगा, बहुत बाद में होगा वो. व्हेन टू एटम्स आर देयर एंड फर्स्ट बॉन्ड, ऑलवेज फर्स्ट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. व्हाट इज दैट कॉल्ड? सिग्मा बॉन्ड. ये आपको मालूम होता है. और एडिशनल जब भी बॉन्ड आएगा इट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड. इट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड. तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और ये क्या है, पाई बॉन्ड है. ओके, ये मालूम होता
ऑलवेज हमेशा फर्स्ट बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो सिग्मा होगा, सेकेंड बॉन्ड क्या होगा, पाई होगा। ओके, इट इज लाइक दिस। मैं वापस बताता हूँ, दी एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी लिखना है, मैंने बताया ना स्टेबिलिटी, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी होगा अभी जस्ट आप सुन लो, बाद में इसके तो बाद में टॉपिक जो आने वाला है उसमें हम लोग स्टेबिलिटी देखेंगे क्या था। सेकेंड, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। व्हाट इज टर्शरी आपको मालूम है, सी वाला। व्हाट इज सेकेंडरी, सी एच वाला, सी एच वाला। एंड प्राइमरी इज व्हाट, प्राइमरी इज व्हाट, CH2 वाला। बेटा ये ना बार बार आप क्वेश्चन ये करो, सी टर्शरी, CH सेकेंडरी एंड CH2 इज व्हाट, प्राइमरी। ओके, इट इज लाइक दिस। अभी आगे हम लोग देखते हैं। ओके, लिसन। ना यहाँ पे देखो, so carbon, a carbon atom, we are talking about carbocation. You know what is cation, positive charge किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। a carbon atom having sectet of, sectet means what, उसके अराउंड कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, sextet of electrons and positive charge is called carbocation. Earlier it is called carbonium ion, but you keep practice of saying कार्बोकैटायन। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, तो आप बोलोगे सर वेट, हम लोग लॉजिकली लिख पाते हैं क्या? अरे सर आपने ही बताया कार्बोकैटायन मींस व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड रहता है। 4 पॉइंट तो आपने ऐसे ही बना दिए। व्हाट इज दैट? एंड डेफिनेशन में लिखा है देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो देखो बेटा यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव मींस व्हाट, इट कैरीज 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ओके, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। एंड आपको मालूम है, अभी देखा हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रोफाइल है, एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड है। सिर्फ ये पॉइंट हम लोग अभी आप याद रखो, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज एंड ज्योमेट्री इज व्हाट, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में वो रहेगा, ट्रायंगुलर। एंड स्टेबिलिटी इज व्हाट, टर्शरी, secondary, primary. Okay, now now at present you don't ask me why it is tertiary is more stable, secondary, ये मैं सब बताऊंगा, but आगे बताऊंगा, this is not the time. Now what is this one? For example, third butyl carbocation. Okay, and they are highly unstable, okay, and reactive. Okay, this. Now what is next one? Carbanion means what, carbon with नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने बताया दे आर सराउंडेड बाय 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा यहाँ पे कार्बन एटम हैविंग ऑक्टेट, 8 मींस व्हाट, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कैरीज नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्बेनाइन। वापस चार्ज क्या है, नेगेटिव। आप बोलोगे सर नेगेटिव है मींस वो तो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो लुईस बेस है, लुईस बेस है वो न्यूक्लियोफाइल है। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहता है कार्बन का, sp3। अभी देखो थोड़ा बता दो, sp3 3 + 1 4 मींस देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या था, sp2 मींस 2 + 1 3, दैट मींस 3 सिग्मा बॉन्ड। इट इज लाइक दिस। हाँ, एंड ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एंड क्या है, मिथाइल, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट वन? लिसन, फ्री रेडिकल। अभी आपको सपोज आपको और एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, लिसन। अरे हाँ सर, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन इज फॉर्म ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक फिजन, ड्यूरिंग हेटेरोलिटिक फिजन। नाउ अगर थोड़ा सा समझा रहेगा तो बोलो, व्हाट इज हेटेरोलिटिक फिजन? मींस व्हाट, फिजन, ब्रेकिंग बिटवीन लार्ज एटम्स विथ लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो देखो ना, ये कार्बोकैटायन मींस कार्बन को डेफिशिएंट कर रहा है, मींस इसका हेटेरोलिटिक फिजन कैसा रहेगा? एनीवन? व्हाट इज हेटेरोलिटिक फिजन? between two different atoms,
और ये अपना जो बंदा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मीन्स वो जो पेयर है वो कोई तो दूसरा भगा के लेके जा रहा है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन भगा के लेके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव। दैट मीन्स carbocation, I can make one more dialogue. Carbocation is formed by heterolytic fission between carbon atom and more electronegative atom. What is this one? Carbanion. So yes sir, again carbanion, again it is formed between heterolytic fission between carbon, but अभी carbon क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खुद खींच रहा है, that means carbon atom and less electronegative atom. Okay, this is what like this, थोड़ा समझ में आना होता है. Okay, now what is next part? Free radical. तो कार्बोकैटन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, कार्बेनन के ऊपर निगेटिव चार्ज था, और फ्री रेडिकल के ऊपर कुछ नहीं था. एंड क्या था, कहाँ पे फॉर्म होता था, तो होमोलिटिक फिजन, टू डॉग्स हैविंग इक्वल पावर ऑफ पुलिंग, है ना. सो आर यू गेटिंग एनी चार्ज? नो. सो व्हाट इज दैट, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे, 7. अनचार्ज कार्बन एटम, चार्ज नहीं था, विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड कैरीज सिंगल इलेक्ट्रॉन, is called free radical. Uncharged carbon atom which is electrically neutral. एक मिनट. Uncharged carbon atom which is electrically neutral and carries single electron is called free radical. अभी वापस. What is that? There is no charge, there are 7 electrons. Okay, तो इलेक्ट्रॉन ना डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा. एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री, sp2 हाइब्रिडाइज, एंड स्टेबिलिटी सेम लाइक योर कार्बोकैटायन, 3 tertiary secondary primary, here also tertiary secondary primary and then methyl. Okay, now बेटा अभी ध्यान देना, यहां तक हम लोग ने क्या पढ़ा, देखो फर्स्ट पार्ट बॉन्ड फिजन, इन दैट वी हैव डन होमोलिटिक फिजन, हेटेरोलिटिक फिजन, उसमें आपको डेफिनेशन लिखना है, बाद में कैरेक्टर्स में कंडीशन और प्रोडक्ट अलोंग विद एग्जांपल लिखना है. हेटेरोलिटिक में भी सेम. आफ्टर दैट वी हैव फिनिश्ड रिएजेंट, वन इज न्यूक्लियोफाइल, अनदर इज इलेक्ट्रोफाइल. आफ्टर दैट वी डिड, जस्ट नाउ वी डिड intermediates, carbocation, carbanion and free radical. Okay, just logically, any, again I am telling, any species with negative charge is electron rich. Rich है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो वो लुईस बेस है. इट इज लाइक दिस. तो धीरे धीरे आपको सीक्वेंस बन जाएगा. ओके बेटा, now listen. Siddhi madam, hello, hello, Siddhi madam is there? Yes sir, I am there. मैडम वो जो बच्चे बार बार अनम्यूट कर रहे हैं ना, उनका घर से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है. आई डोंट नो कहाँ पे है, क्या है, बट उनको जरा प्लीज रिक्वेस्ट करो ना कि म्यूट करके रखें. सर मैं उनको म्यूट कर रही हूँ, वहाँ से अनम्यूट कर रहे हैं. ठीक है, मैं बोलती और हूँ. वो घर से उन लोग का इतना सब बढ़ के. अभी देखो, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम लोग देखा कि एक बंदा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. मींस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, यहाँ वहाँ घूमना होता है. दिस यहाँ वहाँ घूमना इन केमिस्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो वन इफेक्ट इज परमानेंट एंड अनदर इफेक्ट इज टेम्पररी. अभी परमानेंट इफेक्ट किसमें रहेगा, दैट मीन्स लिसन, सपोज कि एक लड़का है, एक लड़की है, सपोज दैट गर्ल या बॉय कोई भी ले लो, दैट सपोज हम लोग जनरली मान के चलते दैट बॉय इज इंटरेस्टेड इन दैट गर्ल एंड दैट बॉय हैज गट्स. तो वो क्या करेगा, विदाउट एनी हेल्प वो जाके उसको प्रपोज कर देगा. डायरेक्ट पूछेगा यस और नो, आई एम इंटरेस्टेड, वेदर यू आर इंटरेस्टेड और नॉट. यस बोलेगी तो ओके, ना बोलेगी तो चलेगा, तो भी चलेगा.
ओके, दूसरा बंदा है वो भी किसी एक लड़की में इंटरेस्टेड है बट उसमें डेयरिंग नहीं है, तो वो क्या करेगा, किसी फ्रेंड का हेल्प लेगा। दैट मीन्स वो फ्रेंड का वाया फ्रेंड वो प्रपोज करेगा। ओके, तो सपोज उसमें प्रॉब्लम है, अगर वो फ्रेंड को ही वो अच्छी लगी तो वो फ्रेंड लेके भाग जाएगा, वो तो बेचारा ऐसे ही बैठेगा, राइट। तो ये टेम्पररी बात होगी, बट यहाँ पे वो जो बंदा है जिसमें गट्स है, अभी केमिस्ट्री में गट्स है मीन्स व्हाट, जिसके पास that atom or that group itself has a tendency to pull electron. Understood? That means those effect in which there is a large electronegativity difference वो परमानेंट रहेंगे, और जो दूसरे हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ही कम रहेगा वो क्या रहेगा, टेम्पररी रहेगा। उसमें हम लोग को एक रिएजेंट डालना पड़ेगा, अगर वो रिएजेंट वापस निकाल दोगे तो वापस आपका क्या आ जाएगा, वापस वो रिएक्टेंट वापस डेवलप हो जाएगा, वापस डेवलप हो जाएगा। ओके, इट इज लाइक दिस। ओके बेटा, 1 मिनट। ओके, चलो आगे। ना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, listen, the displacement of valence electron, एक मिनट। Now, so displacement of valence electron, what is valence electron, जो outermost shell में रहते हैं, resulting in polarization. Polarization means what, development of poles, either positive या negative. Now let me tell you one thing, ये जो poles develop होते हैं, हाँ बेटा ध्यान देना यहाँ ना, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। ना ये जो पोल डेवलप होंगे ना वो ऐसे रहेंगे, इट इज लाइक दिस या फिर लाइक दिस, समटाइम इट इज लाइक दिस या फिर लाइक दिस। ओके, दिस में इसको बोलते हैं यूनिट निगेटिव, इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव, इसको बोलते हैं डेल निगेटिव, इसको बोलते हैं डेल पॉजिटिव। ये जो है डेल निगेटिव और डेल पॉजिटिव इसको बोलते हैं पार्शल, इसको बोलते हैं पार्शल। व्हाट इज पार्शल, नॉट कंप्लीट। और ये जो है यूनिट निगेटिव और यूनिट पॉजिटिव इसको बोलते हैं कंप्लीट निगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव, कंप्लीट निगेटिव, कंप्लीट पॉजिटिव। ओके, सो ये क्या है, डेल निगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। सो दिस डेवलपमेंट ऑफ पोल्स इज कॉल्ड पोलैरिटी। ओके, ये पहले याद रखो। व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, listen. So displacement of valence electron resulting in polarization of organic molecule is called electronic effect. Electronic effect that occurs in the ground state is permanent. अभी बोलोगे ये सर क्या बोला, दैट मीन्स जो एटम का ग्राउंड स्टेट में ही मीन्स व्हाट, स्टेबल स्टेट में ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का पावर है, इट इज व्हाट, परमानेंट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दैट अकर्स इन अ सबस्ट्रेट ड्यू टू अटैकिंग रिएजेंट मीन्स जो बंदा जिसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए कोई रिएजेंट का हेल्प लेना पड़ रहा है वो टेम्पररी है। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, सो हियर inductive effect is there, resonance effect is there and hyper conjugation is there, and यहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता क्या है। अरे हाँ सर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट था तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट पढ़ा,
ओके तो इसमें आपने बताया इंडक्टिव इफेक्ट था, ओके सर, रेजोनेंस है, ओके सर, हाइपर कॉन्जुगेशन है, ओके सर, हम लोग ने तो कभी जिंदगी में ये नाम सुने नहीं है, आप बोल रहे हो तो हम लोग हाँ बोल रहे हैं। अब इसका मतलब, इसका फायदा क्या है सर? सिंपल, ये मैं डेफिनेशन लिखूंगा मेरे को 2 मार्क मिलेंगे, है ना? अपना बेटा ये इंटेंशन है। अरे फिर 2 मार्क मिल रहे हैं तो जरूर नहीं है क्लास ज्वाइन करने का, तो हम लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं। नाउ द थिंग इज व्हाट, ये दिस इंडक्टिव इफेक्ट, दिस रेजोनेंस इफेक्ट, दिस हाइपर कॉन्जुगेशन, दे गिव स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। दैट मींस to explain stability, how these electrons are going to displace, oscillate होगा, this is going to explain by inductive resonance and hyperconjugation. Okay, now listen. तो फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो यहाँ मैं पहले पढ़ता हूं। व्हेन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन इट्स स्ट्रक्चर, पोलैरिटी इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस मीन्स जबरदस्ती से आना, फोर्सिबली वहां पे आएगा। इन adjacent carbon-carbon single bond, in adjacent carbon-carbon single bond is called inductive effect. Tell me, when organic molecule has a polar covalent bond in its structure, polarity is induced in adjacent carbon-carbon single bond is called inductive effect. Okay, अभी ध्यान दो क्या होगा। वन, लिसन, ये CH3, CH2, CH2, CH2 और Cl। ओके, नाउ लिसन, 1 मिनट। लिसन, ये C है, ये C है, ये C है, ये C है, और यहाँ पे ये बंदा है Cl। नाउ क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। व्हाट डज इट मीन? क्लोरीन का पुलिंग पावर ज्यादा है, तो होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसको डिवोर्स नहीं देगा। ये क्या करेगा? ओके, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने पास खींच लेगा, एंड दैट्स व्हाई पूरा का पूरा छीन नहीं लेगा। मींस सपोज आप में से मेरा किसी के साथ पार्टनरशिप है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? 50-50% पार्टनरशिप है, बट धीरे धीरे आपको पता चला कि अरे कर्णिक सर तो ज्यादा मनी इंक्लाइंड है, मीन्स ज्यादा पैसे का लालच है, तो सब पैसा जो बिजनेस में आता है वो उनके पास ही रहता है। मीन्स व्हाट? बट ऑब्वियस आपका भी उसके ऊपर 50% हक है, बट 11th आवर पे मैं रिच कौन हूं? मैं हूं। आपको बार बार मेरे पास आना पड़ेगा कि सर पैसा दो, पैसा दो। दैट मीन्स यहाँ पे as here we are going to get del negative and here we are going to get del positive. अभी देखो क्या हो गया, and let me tell you this inductive effect is shown, this inductive effect is shown by एरो लाइक दिस। मीन्स इसका बीच में ऐसे एरो करने का, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो this arrow in the middle of the bond, this is what representation of inductive effect. How we are going to put arrowhead, this is what arrowhead in the middle of the bond, ऐसे inductive effect, या ऐसे जहाँ पे देखेगा वो inductive effect. Now inductive effect always exists in single bond, means what?
व्हाट इज फर्स्ट बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड में रहेगा। अभी क्या होगा, देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो था ये क्लोरीन के पास चला गया, तो ये कार्बन टेम्पररीली डेफिशिएंट हो गया। तो ये क्या करेगा, ये डेफिशिएंट था, ये डेफिशिएंट हो गया, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, वापस डेल निगेटिव पॉजिटिव आएगा। तो ये भी कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये जो है ये वापस क्या होगा, ये वापस क्या बनेगा, वापस ये ये इन शॉर्ट ये जो है, इन शॉर्ट ये जो है ये वापस क्या बनने वाला है, डेल पॉजिटिव बनने वाला है। ओके, सो बट इसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है इससे कम पावर इसका रहेगा, इससे कम पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन पूलिंग ज्यादा है, ये कार्बन का थोड़ा कम है, ये कार्बन का कम है। तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर नहीं लिखा आपने, याद रखो ये आफ्टर थर्ड कार्बन ये क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। क्या हो जाता है, वैनिश, उसका पुलिंग पावर खत्म हो जाता है। ओके, दिस फंडा इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, दिस फंडा इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ बेटा अभी ध्यान देना, ये क्लोरीन ने, अच्छे से देखो, ये क्लोरीन ने ये कार्बन चेन के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट किया, पॉजिटिव। कौन सा चार्ज क्रिएट किया, पॉजिटिव। दैट्स व्हाई माय डियर दिस क्लोरीन शोज माइनस आई इफेक्ट। That means the group which create positive charge on the carbon atom, carbon chain, shows minus I effect, shows minus I effect. What is minus I effect? Negative inductive effect. What is that? That means this chlorine has, what is the meaning of negative inductive effect? Electron withdrawing effect, electron withdrawing effect. Okay, अभी आगे देखो, suppose कार्बन 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 एंड यहां पे है मैग्नीशियम, मेटल है, यहां पे है यहाँ पे मेटल है, मैग्नीशियम। नाउ यू नो वन थिंग, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, मेटल ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आप बोलेंगे अभी क्यों, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल। ओके, तो होगा क्या, ये रिच बनेगा दिस वे, तो ये डेफिशिएंट बनेगा। ओके, तो वापस ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये थोड़ा सा रिच बनेगा, ये थोड़ा सा रिच बनेगा। तो ये मैग्नीशियम ने ये कार्बन चेन के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट किया, निगेटिव। दैट्स व्हाई दिस मैग्नीशियम शोज plus I effect. What is that? Plus I effect means what? Electron pushing effect. Electron pushing effect. Okay. What is minus I effect? Electron withdrawing effect. Electron withdrawing effect and electron withdrawing effect and plus I effect is what? Electron pushing effect. ओके, अभी हम लोग आगे देखते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो आगे, देखो एक बार मैं वापस बताता हूं। When organic molecule has a polar covalent bond, you must be knowing अभी कि polar covalent bond क्या है, चार्ज डेवलपमेंट होगा।
in its structure, polarity is induced, forcibly developed, induced. Okay, आपको आएगा फिजिक्स में induced current. Okay, जो अपना ट्रेन जो चलता है लोकल ट्रेन, that is because of induced current. Okay, now so in adjacent carbon carbon single bond, याद रखने का. But what I said, when first bond is formed, that is called sigma bond, that is called sigma bond, and this funda is called inductive effect. Now what are the characteristics? So first of all, effect. Now how this effect permanent? Why permanent? Sir ने बोला नहीं, because that electronegative atom itself has a tendency to attract electron. What is next one? Reason. So what is the reason? Because of electronegativity difference between the two atoms. And what is reagent? Now that chlorine itself has a tendency, or that magnesium itself has a tendency to pull or push electron. तो किसी तीसरे आदमी का propose करने के लिए जरूरत है क्या? नहीं है. And that's why बच्चों, it does not require any reagent. Okay, now this 4, 5, 6 point regarding electrons. Now इधर देखो क्या लिखा है, single bond means what? Sigma bond electrons are involved in this. What is next one? वो क्या रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर है वो स्लाइटली इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास आ रहा है, उसको डिवोर्स नहीं दे रहा है दूसरे को. दैट मींस हियर देयर इज अ स्लाइट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ स्लाइट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड एज देयर इज अ स्लाइट शिफ्टिंग, as there is a slight shifting, that's why partial charges. And I told you na early कि what is that, del positive और del negative बनेगा, del positive और del negative बनेगा. And electrons do not leave common octet. Why? Because वहां पे complete charge नहीं आ रहा है. Okay, this way. So वापस एक बार बताता हूँ. What is first one? Effect, then reason, then reagent, then electron type, sigma bond. What is next one? Shifting, and common octet leave नहीं करेगा. Now what is next one? Denotion. Inductive effect का I denoted by I. And what are the types? One is what? Plus I, electron releasing effect, inductive effect, and minus I is what? Electron withdrawing effect. Electron withdrawing effect. Electron withdrawing effect. Okay. Now how to represent? By putting arrowhead in the middle of the bond. Okay, this way. तो बेटा ध्यान दो. Effect अभी listen. अभी मेरे सामने भी स्क्रीन है ना, तो लिसन. तो हम लोग कैसे याद करते हैं? मीन्स व्हाट, हम लोग जब भी लेक्चर देते तो क्या करते हैं, मैं थोड़ी पूरा पढ़ के जाऊंगा. ओके, लिसन. सो हर एक टीचर टॉपिक पढ़ाने से पहले वो प्रिपेयर करके ही आता है, एंड दिस इज द साइन ऑफ गुड टीचर. नाउ द थिंग इज व्हाट, अरे हाँ मेरे को इफेक्ट पढ़ाना है, रीजन पढ़ाना है, रिएजेंट पढ़ाना है, मेरे को 4, 5, 6 पॉइंट इलेक्ट्रॉन पढ़ाना है, बाद में डिनोशन है, बाद में रिप्रेजेंटेशन है, और बाद में और एक पॉइंट क्या रहेगा? ट्रांसमिशन. बट यू नो वन थिंग, इट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन. ओके, एंड आफ्टर थर्ड कार्बन उसका पावर खत्म हो जाता है, आफ्टर थर्ड कार्बन उसका पावर खत्म हो जाता है. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट. तो बच्चों याद रखो, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड, इन शॉर्ट सिंगल बॉन्ड में रहेगा. एंड आफ्टर दैट ओके, that because of that minus I, अभी minus I means क्या करेगा वो? हेलो प्रेम सागर, प्रेम सागर ना. सो माइनस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ये तो विड्रॉ करेगा, दैट्स व्हाई डेल नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा. बट अभी आप लोग याद रखो, दैट ग्रुप विच develops positive charge on the carbon, that group which develops positive charge on the carbon is what? Minus I, and that group which develops negative charge on the carbon is what? Plus I. Okay, this way. Now again I am telling, with the help of this one inductive effect, the application है इसका. Okay, अभी देखो यहाँ पे एक मिनट.
बेटा भी ध्यान देना इधर, लिसन, अभी नहीं, बाद में ये आपको माइनस आई इफेक्ट, व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये थोड़ा सा लिस्ट याद रखना है, इसमें से मेन याद रखो, NO2, देन CN, देखो यहाँ पे CN, अल्डिहाइड कीटोन एसिड, अल्डिहाइड कीटोन, असाइल हलाइड, एनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन एसिड, देन अमाइड, बाद में CF3, Cl3, CCl3, CBr3, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाद में OR, OH, एसिटिलीन एंड देन NH2, एसिटिलीन देन NH2, then C6H5 and then vinyl. Now let me tell you, कोई बुक में जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, कोई बुक में वो यहाँ पे NH2 लिखा रहेगा और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड H लिखा रहेगा, तो आप बोलोगे सर आपने गलत पढ़ा है। नहीं, दिस इज sp कार्बन एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, दैट्स व्हाई ये सीक्वेंस बराबर है। ओके, नाउ आगे ये सब नीट के लिए और जेईई के लिए आपको लगता है, बट अभी है सिलेबस में तो मैं बता दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने नीट वगैरह नहीं पढ़ाया। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट वन, प्लस आई इफेक्ट, तो CH2 माइनस, NH माइनस, अभी देखो नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिच है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, पुश करेंगे। व्हाट इज नेक्स्ट वन, एस्टर, व्हाट इज दिस वन, टर्ड ब्यूटाइल, ऑल, याद रखो, ऑल अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, ऑल अल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, टर्शरी, देन ब्यूटाइल, देन देखो कार्बन नंबर 4 है, तो ब्रांचिंग जहां ज्यादा रहेगा वहां पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा रहेगा। ओके, नाउ आइसोप्रोपाइल, then N propyl, then ethyl, then methyl, then tritium, deuterium and hydrogen। अभी यहाँ पे आगे मजा है, देखो, हाँ अभी ध्यान देना, सपोज ये CC है और यहाँ पे मेरे पास टारगेट है जिसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट होने वाला है, और यहाँ पे है हेलोजन, सपोज X है और ये Y है। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, X का माइनस आई इफेक्ट, व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन पुलिंग इफेक्ट इज मोर देन माइनस Y का, मींस X का माइनस आई इफेक्ट इज ग्रेटर देन Y। अभी देखो यहाँ क्या होगा, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, वी आर ऑब्जर्विंग इफेक्ट ऑफ दिस X एंड Y विच शोज माइनस आई इफेक्ट ऑन दिस T। तो देखो ये T है और ये X है, इसका बीच में हाउ मेनी कार्बन एटम्स देयर, 2, ये T है, टारगेट है, ये Y है, इसका बीच में कितना कार्बन है, 2, दैट मींस इससे और इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, एंड किसका पावर ज्यादा है, X का, एंड दैट्स व्हाई हियर ऑन दिस T वी आर गोइंग टू गेट मोर प्लस डेल्टा, मींस यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। देखो यहाँ पे छोटा डेल्टा लिखा है, यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ओके, आगे देखो नेक्स्ट वन, ये टारगेट है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है। X देखो ना, X is very greater than Y, that means minus I effect of X is very greater than Y। ओके, बट यहाँ पे देखो ये टारगेट है और ये X है, ये टारगेट है और ये Y है, बट ये टारगेट और X का बीच में कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, ये टारगेट और Y का बीच में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे किधर ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, Y में, बट यहाँ पे तो क्या लिखा है सर, पर यहाँ पे तो लिखा है X का पुलिंग पावर ज्यादा है। ओके, तभी भी ये जो पुलिंग पावर है ये डिस्टेंस ओवरकम कर डालेगा, बिकॉज ये टारगेट और Y में एक ही कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन, तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, ओके। तो अभी हम लोग देखो, हाँ एक बताता हूँ, लिसन, हाँ ये टारगेट है, ये 2 कार्बन है, यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, इसके ऊपर ही X है, Y है। X क्या बता रहा है, माइनस I, और Y क्या बता रहा है, प्लस I। तो आप बोलोगे सर X और Y का माइनस और प्लस I कट कर डालेंगे। ओके, तो देखो माइनस I इफेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्लस I, मींस किसका पावर ज्यादा है, माइनस I का पावर ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई यू नो माइनस I इफेक्ट कार्बन के ऊपर क्या डेवलप करता है, पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट्स व्हाई दिस T मींस ये Y का प्लस I इफेक्ट नलीफाई हो गया,
and that's why this T is going to get positive charge. अभी एक मिनट, अभी देखो ये 2 कार्बन है, ओके, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, ओके, 2 कार्बन के बाद टारगेट है, 2 कार्बन के बाद टारगेट है. व्हाट इज दिस वन? यहाँ पे x है, यहाँ पे 2y है ना, और किसका माइनस का इफेक्ट ज्यादा है? x का, और y का कम है. बट हियर देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किधर डेवलप हुआ है? विथ 2y, एंड x के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम डेवलप हुआ है. अभी आप बोलोगे ये सब हम कैसे याद रखेंगे? तो बेटा याद रखने का, जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे होंगे, जब भी आप कोई भी केस में जब भी आप इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करते रहेंगे, तो आपको याद रखना है DNP मींस डिस्टेंस पहले देखने का, बाद में नंबर देखने का, और बाद में पावर देखने का. ये याद रखने का. ओके, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अभी आगे रेजोनेंस इफेक्ट. वापस ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या डेवलप करेगा? क्यों पढ़ेंगे? स्टेबिलिटी के लिए. अभी इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर मूव होता था? सिग्मा बॉन्ड मींस व्हाट? सिंगल बॉन्ड वाला. रेजोनेंस इफेक्ट में जो मूव होने वाला इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड है, मींस व्हाट? डबल बॉन्ड वाला. ओके, ये पहले मालूम मिलता है. नाउ हियर देखो, delocalization means what? Movement of pi electron or complete transfer of pi electron from one shell to other is called resonance. It's called resonance. Okay, now let me tell you one more thing. What is this resonance का फंडा? If one structure is unable to show, अभी आपका इधर लिखा नहीं है, if one structure is unable to show all the properties of that compound, we have to draw one more structure. Okay, and these structures are called resonating structure. That means एक ही structure का we can draw, okay, we can draw so many structures, okay, and they are called resonating structures. Okay, आगे 1 minute. एक मिनट बेटा, ध्यान देना इधर. यहाँ पे देखो, मीन्स कोई भी एक स्ट्रक्चर है, सपोज इसका ऐसे स्ट्रक्चर्स रहेगा 1 2 3 4 5 6. ओके, और इसमें से कोई सपोज ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर. तो फिर ये वाला इसको क्या बोलेंगे? ये जो बाकी है इनको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. क्या बोलेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. और इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है. अभी क्वेश्चन आता है, हाउ टू डिसाइड आउट ऑफ दिस विच वन इज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, नाउ बेटा और एक चीज बताता हूं. ओके, मैंने मीन्स व्हाट, कोई टीचर देखे हैं कि वो बोलते हैं कि बेटा ध्यान दो, हाँ, रेजोनेंस इफेक्ट स्टार्ट करते टाइम वो ऐसे पहले बेंजीन बताते हैं. ये बेंजीन है. अब मैं बताता हूँ आपको, ये बेंजीन है. ओके, नाउ सो हियर ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आएगा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे आएगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आएगा. So we are going to get structure like this.
फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन का सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.356 है और ये 1.33 है, बट बेंजीन में एक्चुअली सबका बॉन्ड लेंथ 1.39 रहता है. ओके, एंड दैट्स व्हाई टू डिस्क्राइब दिस वन वी रिक्वायर टू स्ट्रक्चर्स. ओके, अभी आप बोलोगे सर इसमें से कौन सा स्टेबल है, एक भी नहीं. तो इसमें स्टेबल स्ट्रक्चर इन शॉर्ट ये दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसे रहेगा. ओके, व्हाट डज इट मीन? ये डबल बॉन्ड देखो, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये डबल बॉन्ड इधर है, इधर है, इधर है. ये डबल बॉन्ड देखो एग्जैक्टली उल्टा साइड में है ना. दैट मीन्स व्हाट डज इट मीन? डबल बॉन्ड का पोजीशन इज नॉट फिक्स. डबल बॉन्ड का पोजीशन इज नॉट फिक्स. दैट्स व्हाई ये ऐसा करते हैं. और कभी कभी आपने देखा रहेगा बेंजीन में सर्कल ड्रॉ करते हैं. व्हाट डज इट मीन? इट इज व्हाट डबल बॉन्ड्स आर ऑलवेज ऑसिलेटिंग. डबल बॉन्ड्स आर ऑलवेज ऑसिलेटिंग. ओके, अभी टीचर यहाँ पे लिखता है बेंजीन शोज रेजोनेंस इफेक्ट. इट इज टोटली रॉन्ग. बेंजीन शोज रेजोनेंस इफेक्ट, ऐसा कोई बोलेगा रॉन्ग है. इट शोज रेजोनेंस बट इट इज नॉट शोइंग रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट आप कभी बोलने का बेटा, ये याद मांगता, पढ़ने का कम बट प्रॉपर वे में पढ़ने का. रेजोनेंस इफेक्ट कभी बोलेगा बच्चा, याद रखने का, जब भी इसके ऊपर कोई तो पोलैरिटी आएगा, पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव. इन शॉर्ट, जब भी ये स्ट्रक्चर के ऊपर चार्ज आएगा ना तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. क्या बोलते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट. आर यू गेटिंग एनी चार्ज इन दिस टू स्ट्रक्चर? नो. दैट मीन्स देयर इज नो रेजोनेंस इफेक्ट. इट शोज ओनली रेजोनेंस. ओके, दिस वे. नाउ आगे, अभी रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होगा? लिसन, देयर शुड बी कॉन्जुगेशन. व्हाट इज कॉन्जुगेशन? लिसन हियर. डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल लोन, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डॉट. ओके, दीज आर द 5 कंडीशन. इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन. व्हाट इज कॉन्जुगेशन? देखो, डबल में सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन. सो दीज आर व्हाट 5 कंडीशन. डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल निगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डॉट. ओके, सो दिस आर व्हाट कंडीशन फॉर रेजोनेंस. अगर ये है तो रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा. एंड व्हाट इज रेजोनेंस? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन. अभी यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा. ओके, और यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा. ओके, नाउ ये निगेटिव चार्ज है. निगेटिव चार्ज मींस व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच. इसको जरूरत है क्या? नहीं. तो ये पाई बॉन्ड इसका दूर भागेगा. ओके, ये क्या है? लोन पेयर है, वापस इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इससे दूर भागेगा. और यहाँ पे डॉट है तो क्या होगा? ये लिसन हियर, ये यहाँ पे डॉट है तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा? डबल बॉन्ड. डबल बॉन्ड. तो दिस ये सब अभी हम लोग देखेंगे. यहाँ पे देखो किसका मूव हो रहा है? पाई बॉन्ड का. कभी पाई बॉन्ड नजदीक आ रहा है, कभी पाई बॉन्ड भागे जा रहा है. यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बन के बॉन्ड बन रहा है. ओके, इट इज लाइक दिस. अभी लिसन, ये जब भी पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड जब भी इधर आएगा तो बट ऑब्वियस यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज. और यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे क्या डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज. अभी देखो, ये निगेटिव पॉजिटिव साथ में आ गए, तो याद रखने का, जब भी निगेटिव पॉजिटिव साथ में आते हैं ना तो वहां पे बॉन्ड डेवलप होता है. क्या डेवलप होता है? बॉन्ड. तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड डेवलप हो जाएगा. ओके, इट इज लाइक दिस. नाउ वन मोर थिंग, when this positive and negative charge come closer on adjacent carbon,
एडजेसेंट कार्बन, पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये इसमें चार्ज का एक्सचेंज हो जाएगा, चार्ज का एक्सचेंज हो जाएगा और अल्टीमेट चार्ज कम हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, amount of positive charge when decreases, amount of positive charge when decreases, okay, that ion gets stability. So stable ion is that ion which carries less charge. It is immaterial whether it is negative or positive, whether it is negative or positive. समझा बेटा? Now आगे देखो। तो देखो, delocalization of pi electrons और complete transfer of pi electron from one shell to other, ये यही लिखा था मैंने, अभी बताया वो। ओके, अभी आगे देखो, what is conjugation, ये वाला जो दिख रहा है वो, a given atom or group is said to be in conjugation with unsaturated system, unsaturated system, है ना, if it is directly attached to, if it is directly attached to one of the atom of multiple bond through single bond, देखो ना, one of the atom to multiple bond through what tell me, single bond, और it has positive charge और negative charge और lone pair और odd electron, यही तो मैंने सब लिखा है। This is called conjugation, this is called conjugation. Okay, now this part, okay, is what, stability. मैंने बताया ना, रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग किधर देखेंगे, मींस व्हाट, टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस और कंपाउंड। नंबर 1, ओनली फ्यू मिनट्स आर देयर, मैं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स, डोंट वरी, एग्जांपल के साथ बताऊंगा। स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, ओके, देन लेस कोवेलेंट बॉन्ड, मींस जो स्ट्रक्चर में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्टेबल, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मींस किसी एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वन, नॉन पोलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन पोलर, मींस जो स्ट्रक्चर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है आर व्हाट, मोर स्टेबल। फॉर चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दैट मींस दोनों के ऊपर चार्ज है, दोनों के ऊपर चार्ज है। फॉर चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इफ नेगेटिव चार्ज on more electronegative and positive charge on less electronegative is more stable, is more stable. हाँ बेटा, एक की मिनट, please listen here. What I wrote here, negative charge on more electronegative is more stable, और उल्टा positive charge. हाँ, एक की मिनट सीवियर देखना, if negative charge is on more electronegative, why it is stable? आपको मैंने क्या बताया, when amount of charge decreases it becomes बोलो बेटा stable, है ना। Listen, suppose मेरे पास ये एक एटम है और मेरे पास ये एक एटम है, सेंटर में बट ऑब्वियस पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर में बट ऑब्वियस पॉजिटिव चार्ज है। दिस इज व्हाट रेडियस r, सपोज r2 है ये, और ये छोटा सा r1 है, तो आपको मालूम है कि r2 इज ग्रेटर देन r1। नाउ लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस व्हाट, पुलिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने निगेटिव चार्ज सप्लाई किया, निगेटिव 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 निगेटिव, उतना ही चार्ज मैंने यहाँ पे भी सप्लाई किया, बट इसका सरकमफरेंस ज्यादा है, निगेटिव 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 निगेटिव। अभी देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिख रहा है, एंड डिस्टेंस कम है तो ये पॉजिटिव का और निगेटिव का एक्सचेंज जल्दी होगा। एंड एक्सचेंज, मैंने अभी इसके पहले बताया था, अगर एक्सचेंज जल्दी होगा तो बट ऑब्वियस अमाउंट ऑफ चार्ज कम हो जाएगा, एंड व्हेन अमाउंट ऑफ चार्ज डिक्रीजेस बट ऑब्वियस potential energy decreases, and that's why stability increases, and that's why this is what more electronegative है। ओके, क्योंकि इसका रेडियस कम है करके ये
more electronegative है, and that's why more electronegative charge, more electronegative atom with negative charge is more stable. Okay, ये याद रखने का. Okay, now it is almost 5:30, so here we'll take rest and we'll continue next time. Okay, hope you understood this one. Again I am telling, already I have shared notes with sir. So bond fission, homolytic, heterolytic, then nucleophiles and electrophiles, then carbocation, carbanion, free radical, next one inductive effect, and what is next one which is going on is what? Resonance effect. Okay, so we'll stop here. Happy Sunday. मग परत मला कॅनरा बँकेत जा, एक थैंक यू सर.